सेंट्रल एवेन्यू में मौजूद इस्लामिया अस्पताल अब न सिर्फ डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बल्कि स्वास्थ्य साथी कार्ड से बड़ा बड़ा ऑपरेशन को सक्सेस करके इंसानों को दूसरी जिंदगी बख्शने का काम कर रही है। अस्पताल इंतजामिया रूहिल आलम, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अनवर जमाल, डॉक्टर एसआई सादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि इन चंद महीनों में कुछ ऐसे मरीज मौत के मुंह से बाहर निकले हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। नदिया जिला के कौसर घायल 48 साल जिसके ब्रेन के दाएं हिस्से में ट्यूमर होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मगर इस्लामिया में स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए एक बड़ा ऑपरेशन को सक्सेस किया गया। वहीं कोलकाता के 7 नंबर हरनबाड़ी रेल का रहने वाला बासिंदा मोहम्मद अजदुल्ला, जो खतरनाक लूज मोशन होने की वजह से दोनों किडनी खराब हो गई थी, मगर इस्लामिया अस्पताल के डॉक्टरों की कोशिश की वजह से इन्हें नई जिंदगी मिली। इसके अलावा सेंट्रल एवेन्यू का बासिंदा जिसके थॉट में सर्वाइकल स्पेन को ऑपरेशन को सक्सेस करके इनकी जिंदगी को राहत बख्शी गई, और ये सभी ऑपरेशन स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए हुआ। इन दिनों शहर कोलकाता में डेंगू और मलेरिया हाहाकार मचा रखा है। इस्लामिया अस्पताल इससे भी लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर उतर चुकी है, जहां स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए सारा इलाज किया जा रहा है। बेड के लिए भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइंदा दिनों में इस्लामिया अस्पताल हार्ट, गाइनो और चाइल्ड का भी बेहतर इलाज का बंदोबस्त करेगी। आइए सुनते हैं डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। বর্তমান পরিস্থিতির সাথে কলকাতা এবং তার অধ্যুষিত যত জেলায় আছে সেখানে আমরা ডেঙ্গুর একটা প্রভাব বেড়েছে, যে কারণে অনেকের কাছে একটা আতঙ্ক বা তাদের কাছে এরকম মেসেজ পৌঁছাচ্ছে যে কলকাতার হসপিটালগুলোর মধ্যে বেড অ্যাভেলেবিলিটি নেই বা ট্রিটমেন্টের অভাব হচ্ছে। বাট আমার ইসলামিয়া হসপিটাল, আমরা সকল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবং কলকাতার মানুষদের কাছে একটাই মেসেজ আমরা পৌঁছাতে চাইছি যে আপনাদের কোনো রকম কোনো চিন্তার কারণ নেই, কারণ আমরা কলকাতার মধ্যে ইসলামিয়া সেন্ট্রাল এভিনিউতে আমরা ডেডিকেটেড ডেঙ্গুর জন্য এবং ম্যালেরিয়ার জন্য আমরা এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে রেখেছি। যেমন আমরা 18টা আইসোলেটেড আইসিইউ বেড এবং 50 তার জেনারেল বেড আমরা সেইভাবে রেডি করে রেখেছি। আমাদের দুদিন আগেই আমার কলকাতার মেয়র এবং আমার ইসলামিয়া হসপিটালের প্রেসিডেন্ট মাননীয় ফিরাদ হাকিম সাহেব আপনাদের কাছে জানিয়েছে যে ইসলামিয়া হসপিটালে ডেঙ্গু ট্রিটমেন্ট জন্য প্রস্তুত আছে। আমরা সেটাই আরো বেশি আপনাদের কাছে ক্লিয়ারিটি করার জন্য আমরা আপনার কাছে সকলের কাছে আমরা সেটাই জানাচ্ছি যে আমরা পুরোপুরিভাবে ইসলামিয়া হসপিটাল প্রস্তুত আছে মানুষকে চিকিৎসার পরিষেবা দেওয়ার জন্য। শুধু ডেঙ্গু নয়, যে কোনো রকম কোনো রোগের যদি কেউ তার মধ্যে ট্রিটমেন্টের জন্য যারা কলকাতার মধ্যে আসেন, ইসলামিয়া হসপিটাল সেসব ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। কিছু ইমার্জেন্সি পেশেন্ট আসলে তাদের কি করবেন? দেখুন, আমরা পুরোপুরি একটা হসপিটাল যখন আমরা যখন রান করছি তার ইমার্জেন্সি বেসিসে আমাদেরকে পুরোপুরি তৈরি থাকতে হয়। আমার ইমার্জেন্সি ডক্টর, আমার আরএমও, আমার ওয়ার্ড আরএমও, আমার সব এবং কনসালটেন্ট সকলেই আমরা প্রস্তুত আছি আমরা এই ইমার্জেন্সির প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করার জন্য। এবং আমরা অলরেডি এখানে ডেঙ্গু পেশেন্ট অ্যাডমিট করেছি, তার মধ্যে 100% আমাদের তার ফিডব্যাক বা তার ইমপ্রুভমেন্ট আমরা পুরোপুরিভাবে পাচ্ছি। এবং আমার সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর আনোয়ার জামাল, আরও মেডিসিনের ডক্টর, সার্জারি ডক্টর সকলেই প্রস্তুত এই প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করার জন্য। হসপিটালে কত ডেঙ্গু পেশেন্ট আছে? আমরা এট প্রেজেন্ট 10 জনের মতো পেশেন্ট আছে এবং কাল পরশু 2-3 দিন আগেই আমরা অনেক পেশেন্টকে রিলিজ করেছি। আমরা যেমন যেমন পরিস্থিতি অ্যাডমিট হচ্ছে তারা সুস্থ হয়ে তারা বাড়ি চলে যাচ্ছেন। তো রেগুলার বেসিস একটা এভারেজ 10-12টা পেশেন্ট আমাদের থাকছে। প্রশ্ন এটা কি দিয়েছে আপনাকে? দেখুন, আমাদেরকে কলকাতা কর্পোরেশন এই ইসলামিয়া হসপিটাল সেন্ট্রাল এভিনিউ, যেটা একটা সেন্ট্রাল জায়গার মধ্যে, যে আমাদের এই হসপিটালের যাতে আমরা প্রত্যেকটা পেশেন্টকে স্বাস্থ্যসাথীর মধ্যে ডেঙ্গু ট্রিটমেন্ট, ম্যালেরিয়া ট্রিটমেন্ট এবং তার সাথে বিভিন্ন রকমের রোগের ট্রিটমেন্ট যাতে দিতে পারি, তার জন্য আমাদের মেয়র সাহেব এবং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আমিরুদ্দিন ববি সাহেব এবং সকল মেম্বার কমিটি সবাই প্রস্তুত আছি। আমাদের উদ্দেশ্যই সেটা যে সকল মানুষ যেন ট্রিটমেন্টের কোনো অভাব বা তাদের কাছে ক্রাইসিস না থাকুক, আমরা সেই জন্য প্রস্তুত
এবং আমাদের উদ্দেশ্যটাই সেটা যে সকল মানুষ আমাদের কাছে আসুক, আমরা আমাদের বেস্ট আমরা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। চাইল্ড ট্রিটমেন্ট যেরকম হয়? দেখুন, আমাদের মেনলি পেডিয়াট্রিক্স একটা ইউনিট এখনো পর্যন্ত আমরা রান করতে পারিনি, কারণ একটা পেডিয়াট্রিক্স ইউনিট রান করতে গেলে তার যে পরিকাঠামোটা দরকার সেটা আমরা আগামী দিন আমাদের প্ল্যানিংয়ে আছে, আমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ আমাদের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট শুরু হয়ে যাওয়ার পরে আমরা পেডিয়াট্রিক্সটা খুব শীঘ্রই আমরা রান করব। আর ইসলামী হসপিটাল আর কি কি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে? দেখুন, ইসলামিয়া হসপিটালে লাস্ট 2 মাসে আমরা অনেক বড় ওটি করেছি। আমরা নিউ ওটি, একটা পেশেন্ট, নদিয়ার পেশেন্ট, তিনি আমার এখানে অনেক হসপিটাল তিনি ঘুরেছিলেন, তারপরে ডক্টর SI সাদিক স্যার ওনাকে পরামর্শ দেয় যে ইসলামিয়া হসপিটালে এসে তার যে ব্রেন টিউমার, একটা বড় ওটি, যেটা আমরা সকলেই জানি যে ব্রেনের মধ্যে একটা টিউমার ওটি করাটা কতটা ডিফিকাল্ট, সেটা আমার এখানে সেই পরিকাঠামো ছিল এবং ডক্টর SI সাদিক সেই পেশেন্টের সম্পূর্ণভাবে সঠিক ওটি করে পেশেন্ট কালকে ডিসচার্জ হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকে পুরোপুরি স্বাস্থ্যসাথীর মধ্যেই সেই ট্রিটমেন্টটা হয়েছে এবং পেশেন্ট সুস্থ আছে। ইনশাল্লাহ এর থেকেও বড় ওটি আমরা তো করার জন্য প্রস্তুত আছি। তার সাথে এখানে জেনারেল ওটি, ইউরোলজি, আমাদের ডায়ালিসিস ইউনিট, আমরা যেটা মেডিকেল কন্ডিশন যে কোনো পেশেন্ট যেরকমভাবে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন আছে আমরা তার জন্য প্রস্তুত আছি। ট্রিটমেন্টটা হয়েছিল? এই যে পেশেন্টটা, যেটা ব্রেন টিউমার পেশেন্ট ছিল, লাস্ট উইক উনি অ্যাডমিশন হয়েছিলেন 23 তারিখে। কালকে ইনশাল্লাহ পেশেন্ট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে। একটা টিবি ট্রিটমেন্ট একদম ডক্টর SI সাদিক স্যার আরও একটা পেশেন্ট এখানে সার্ভাইকাল স্পাইনে টিবি একটা পেশেন্ট ওটি হয়েছে, পেশেন্ট পুরোপুরি সুস্থ, কলকাতারই পেশেন্ট, তিনিও আশা করছি 2-3 দিনের মধ্যে ডিসচার্জ হয়ে তিনিও সুস্থভাবে ফিরে যাবেন। আমরা এরকম অনেক কেস, শুধু ওটি নয়, আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টও এখানে ডক্টর আনোয়ার জামাল, ডক্টর আসিফ নিজাম অনেকেই এখানে করছেন। জেনারেল সার্জারি, দেখুন আমরা সবাই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে ভাবি যে একটা অ্যাপেন্ডিক্স বা একটা মাইক্রো সার্জারি খুব ছোট ওটি, কিন্তু দেখুন আমরা একটা কথাই সকলকে বলি যে দেখুন কোনো ওটিটাই ছোট নয়। ওটি, যে কোনো ওটি একটা রিস্ক থাকে, তার একটা প্রবলেম থাকতেই পারে, সেটা আমরা বাইরে থেকে সেটাকে জাজ করতে পারি না যেটা ছোট না বড়। যে কোনো ওটির ক্ষেত্রেই একটা রিস্ক থাকে এবং প্রত্যেকটা ডক্টর সেই চেষ্টা করেন সেই পেশেন্টটাকে সঠিকভাবে সুস্থ করে তার বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। আমরাও সেই জন্য আমরা দিবারাত্রে 24 ঘন্টায় আমরা ইমার্জেন্সি সার্ভিসের সাথে যুক্ত আছি। ইসলামিয়া হসপিটালের প্রত্যেকটা ম্যানেজমেন্ট, আমাদের সেক্রেটারি, আমাদের প্রেসিডেন্ট, তেনার উদ্দেশ্যই যে মানুষ সঠিক ট্রিটমেন্ট স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মধ্যে পাক এবং সর্বনিম্ন খরচের মধ্যে তাদের এখানে ট্রিটমেন্ট হয়ে তারা সুস্থভাবে বাড়ি ফিরে যায়। আমাদের চেষ্টা এটাই। দেখুন, আমরা এত বড় একটা সংস্থার মধ্যে জড়িয়ে আছি, ভুল ভ্রান্তি মানুষ মাত্র হতে পারে। তাদের কাছে আমার একান্তভাবে আপনাদের কাছে অনুরোধ, কোনো ভুল ভ্রান্তি অভিযোগ থাকলে আপনারা আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। আমরা কথা দিচ্ছি কোনো স্পেসিফিক কমপ্লেন যদি আমাদের কাছে আসে, আমাদের ম্যানেজমেন্ট আছে, আমাদের সেক্রেটারিরা আছেন, ডক্টর সুপারিনটেন্ডেন্ট আনোয়ার জামাল আছেন, সকলেই আমরা সেটা নিঃসন্দেহ তার জন্য প্রস্তুত আছি যে সেই কমপ্লেনটা আমরা সঠিক জাজমেন্ট আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দেবো। আগের দিনে ইসলামী হাসপাতাল কি কি কাজ করতে চলেছে? দেখুন, ইসলামিয়া হসপিটালের নেক্সট যে বড় প্রজেক্ট আমাদের সেটা হচ্ছে ক্যাথ ল্যাব। কারণ অধিকাংশ মানুষের এখন হার্ট ব্লক, তার হার্ট ফেলিওর, অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে, কিন্তু দেখুন একটা পেশেন্ট হসপিটালে পেশেন্ট নিতে গেলে তার একটা পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়, যেটা আমাদের ক্যাথ ল্যাব যে একটা প্রজেক্ট, যে ক্যাথ ল্যাব প্রজেক্টটা অলরেডি আমাদের মেশিন এসে গেছে। একটা ইনস্টলেশন পিরিয়ড টাইম থাকে, সেটা আমরা আশা রাখছি 1 মাসের মধ্যে সেই ইনস্টলেশন হয়ে গেলে আমরা মানুষের কাছে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের জন্য যে অভাবটা আমাদের ইসলামিয়াতে ছিল সেটা পরিপূর্ণভাবে আমরা সম্পূর্ণ করতে পারবো। এবং তার সাথে নেক্সট প্রজেক্ট হচ্ছে আমাদের আপনার গাইনোকোলজি, যেটা আমাদের সিজার বা পেডিয়াট্রিক্স, এইটাও আমাদের আগামী দিন খুলছে। তার সাথে সাথে সবথেকে বড় কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের আরেকটা পার্ট আছে CTVS। CTVS হচ্ছে ওপেন হার্ট সার্জারি, যেটা সেটাও আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে আছে এবং সেটাও ইনশাল্লাহ আমরা টাইম মেনশন করছি না, বাট ইনশাল্লাহ সেটাও আমরা খুব দ্রুত, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব আমিরুদ্দিন ববি সাহেব তিনি প্রত্যেক দিন এটাকে নিয়ে ফলো আপ করছেন এবং আমরাও তার সাথে আমাদের টিম পুরোপুরি কাজ করছে সেটার জন্য। আমরা
একটা মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে যে পরিকাঠামো থাকা দরকার, তার জন্য আমাদের যে যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, আমরা তার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে সেটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুতি রাখছি এবং আগামী খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলো আমরা চালু করে দিতে পারি। ইসলামিয়া হসপিটালে কি আগের দিনে চাইল্ড ট্রিটমেন্ট জন্য কিছু ভালো? একদম, আপনাকে আগেই বললাম যে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল করতে গেলে বা তার পরিকাঠামো রাখতে গেলে সবকিছু ট্রিটমেন্ট আমাকে দিতে হবে। তো আমরা আগামী দিন যেটা পেডিয়াট্রিক্স জন্য আমরা এনআইসিইউ এবং আমরা তার জন্য স্পেসিফিক যে ওয়ার্ড আমরা অবশ্যই মানে চালু করবই। এটা আমাদের আগামী দিনের প্রজেক্ট। এটা আমাদের। मेरा नाम डॉक्टर अनवर जमाल हूँ। मैं अभी इस्लामिया के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हूँ। कि हम लोग डेंगू पेशेंट रिसीव करने के लिए एकदम वेल प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग के पास एडिक्वेट बेड्स है, एडिक्वेट स्टाफ है और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम लोग इससे आगे भी पेशेंट्स ले रहे थे एडमिशन डेंगू पेशेंट के, और फर्दर रेडी हैं कि अगर एक्सेसिव लोड आ गया तो उसको भी हैंडल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी के लिए हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस बुलाया। लगभग अभी 8 से 10 पेशेंट हम लोगों के पास अभी है। और कितने डेडिकेटेड बेड हम लोगों ने 18 बेड रेडी किया है, और जनरल में भी अलग से रेडी है 18 आइसोलेटेड। स्टिल हम लोगों के पास स्पेस एंड बेड दोनों अवेलेबल है, ताकि हम लोग अगर फर्दर एक्सटेंशन कर सकते हैं उसको। इस्लामिया हॉस्पिटल वी आर रेडी टू रिसीव एनी नंबर ऑफ केसेस। कितने पेशेंट एहतियात होकर गए यहाँ से डेंगू के? हम लोगों का डेंगू का 100% सक्सेस रेट है। आपको हम लास्ट एक एपिसोड बता रहे हैं। एक पेशेंट ये आए थे हम लोगों के पास, मोहम्मद मुश्ताक साहब, गार्डन रीच के रहने वाले। ये डेंगू के एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस में आए थे। इनको जॉन्डिस भी हो गया था डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस में। इनकी ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गई थी टंग से, और दूसरे जगहों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया एंड उसे एहतियात होकर के कल डिस्चार्ज होके गए। कितने दिनों तक इनका ट्रीटमेंट रहा? ये यहाँ पे रहे हैं, 19 तारीख को एडमिट हुए थे और कल डिस्चार्ज हुए हैं, यानी 10 दिन। जो ब्रेन का ऑपरेशन जो आप लोगों ने किया है उसके बारे में बताएं। जी, ये ब्रेन का ऑपरेशन है। हमारे डॉक्टर SI सादिक साहब हैं, ही इज अटैच्ड टू बांगुर हॉस्पिटल, न्यूरोसर्जन हैं। इन्होंने क्या किया था एंड ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी जुबानी सुने। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी, बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस, SSKM हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ, और यहाँ पे भी ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ से भी अटैच्ड हूँ। लास्ट 23 तारीख को हम लोगों ने एक नदिया डिस्ट्रिक्ट के एक पेशेंट, उसका नाम था कौसर कायल, 48 साल उम्र है उनका, और उनके ब्रेन के दाहिने हिस्से में एक ट्यूमर था जिसको बोलते हैं मेनिंजोमा, राइट फ्रंटल मेनिंजोमा। उसकी ऑपरेशन हुई यहाँ पे, और अल्लाह का रहमत है सब चीज़ ठीक ठाक हो गया। इस्लामिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। इस्लामिया अस्पताल से हम और डॉक्टर अनवर जमाल बहुत पहले से अटैच्ड हैं। तो तकरीबन जब हम लोग पढ़ाई करके यहाँ शुरू किए थे अपना करियर 2000 से, तो उस वक्त माहौल दूसरा था। अभी तो इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, वार्ड और ये सब। यू कैन कंपेयर द फैसिलिटीज विद एनी ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। सिर्फ थोड़ा और हम लोग चाहें तो मिलकर इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहली बार ये ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हुआ है। पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होकर घर जाने वाला है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। सारे इंतजाम, सब चीज़ अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा चीज़ ये स्वास्थ्य साथी के जरिए हुआ है। इतना बड़ा ऑपरेशन आप बाहर कहीं करने जाएंगे, दूसरे हॉस्पिटल में बहुत खर्च आती है। तो बेहतर है कि यहाँ से हम लोग शुरू करें, और इसको धीरे धीरे और आने वाले दिनों में इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा भी मैंने कई ऑपरेशन किए हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्वाइकल स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हुआ था पेशेंट को, उसको भी लास्ट वीक हमने ऑपरेशन किया और अच्छा रिजल्ट हुआ, और ऑपरेशन बहुत बेहतर हुआ है। तो आप लोग दुआ कीजिए। ये इदारा, ये इंस्टीट्यूट सब आप लोगों का है। हम लोग चाहें तो इसको मिलकर और बेहतर बना सकते हैं। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप सभी को सामने आना होगा। सर, ट्यूबरकुलोसिस को पर्टिकुलर टीबी बोला जाता है, जो कि कमजोर आदमी को होता है। जब आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है तो वो फ्लेयर अप होता है। वो कहीं भी हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में हो सकता है, फेफड़े में ज्यादा कॉमन होता था। तो हम जो इस पे डील करते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके, इनका रीढ़ की हड्डी का तीसरा और चौथा हड्डी पूरा गल चुका था, और वो जाकर के स्पाइनल कॉर्ड को चाप रहा था, जिससे आंखों में कमजोरी आ रही थी। उस जगह को निकाल के हम लोग वहाँ मशीन बैठाए हैं, और पेशेंट को रिकवरी हुआ है। उसका सारा इंतजाम यहाँ पे स्वास्थ्य साथी के जरिए हुआ है। ये पेशेंट कहाँ के थे?
ये पेशेंट ये आपका यही आसपास ही रहते हैं, सेंट एलुमनी के आसपास। ये एक और केस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हम लोगों के यहाँ ये चल ही रहा है। एक और क्रिटिकल पेशेंट ये हम लोगों के यहाँ एडमिट हुआ था, और इस पेशेंट का एडमिट हुआ था, ये बहुत लेट से प्रेजेंट किया था हम लोगों के पास लूज मोशन और वॉमिटिंग लेकर के। इतना सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया था लूज मोशन और वॉमिटिंग के बाद कि इसकी दोनों किडनी कंप्लीटली खराब हो गई थी। उसका एकदम यूरिन आउटपुट बंद हो गया था, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। एकदम यूरिन आउटपुट नील था। वो तकरीबन हम लोगों के पास यहाँ पे एडमिट था 8 तारीख से लेके 25 तारीख तक। इसको डॉक्टर आसिफ निज़ाम देख रहे थे और हम दोनों मिलकर के साथ ये कर रहे थे, और तकरीबन इसको 15 से 18 डायलिसिस लगे हैं। उसके बाद उसकी कंप्लीट रिकवरी हो गई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह 25 तारीख को डिस्चार्ज होकर के घर पेशेंट का गया। नाम क्या बोला? पेशेंट का नाम है मोहम्मद अजदुल्ला। वो रहने वाले थे 7 हरिनबारी लेन के, कोलकाता 73 कर रहे थे। ये पेशेंट कितने दिनों से इस बीमारी से जूझ रहे हैं? इसको बस आने से पहले 1 हफ्ता पहले उसको लूज मोशन हुआ, जिसको आम आदमियों की तरह से हर आदमी इसको नेग्लेक्ट करता है कि अरे पाखाना हुआ, इंडाइजेशन हुआ, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कभी दवाई दुकान से दवाई ले लेता है, 1 आध खुराक खाता है, 2 खुराक खाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि उसका पाखाना बंद होने का नाम नहीं लिया, उल्टी बंद होने का नाम नहीं लिया। शरीर से सारा पानी निकल गया उसके, एकदम डिहाइड्रेशन। किडनी का खाना वही है, पानी। पेशेंट की उम्र क्या थी? पेशेंट की उम्र 22 साल का बच्चा था। हॉस्पिटल में तकरीबन एक हॉस्पिटल को चलाने वाली जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ओपीटीज हैं डिपार्टमेंट वाइज, इंटरनल लैब सर्विसेज है, एक्सरे अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, इकोकार्डियोग्राफी अवेलेबल है, ईसीजी अवेलेबल है, सीटी स्कैन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एंजियो किया जा सकता है। और इसको फर्दर अपग्रेडेशन के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको और किस तरीके से और नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके, मशीन को और फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ईआरसीपी का फैसिलिटी अवेलेबल है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी का फैसिलिटी अवेलेबल है, मॉड्यूलर ओटी है। बहुत सारे जगहों पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मॉड्यूलर 3 मॉड्यूलर ओटी हम लोगों के पास काम कर रहा है इस वक्त, और टोटल डेडिकेटेड स्टाफ है, इन हाउस एडमिशन है, अराउंड 31 बेड का आईसीयू अवेलेबल है, अराउंड फंक्शनल 50 बेड का जनरल बेड अवेलेबल है। डेडिकेटेड एक डेंगू का हम लोगों ने एक सेक्शन बना दिया है, एंड स्टिल वी हैव स्पेस लेफ्ट, और बेड्स और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है कि अगर हम लोगों के पास सडन लोड आ गया तो हम लोग इमीडिएटली एक्सपैंड कर सकते हैं। बच्चों के लिए अभी हम लोगों के पास पूरा डेडिकेटेड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिशियन और डेडिकेटेड पीडियाट्रिक एसोसिएटेड एमओ की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम लोग नहीं, और बहुत सेंसिटिव इशू होता है, अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो हम लोग अभी उसको नहीं ये कर पा रहे हैं। हम लोगों का काम चल रहा है, ग्राउंड वर्क चल रहा है, वी आर इन टॉक्स विथ वेरियस पीडियाट्रिशियन, और हम लोग दूसरे एमओ से भी ये कर रहे हैं कि हम लोग इसको किस तरह से जल्द एक्सपैंड कर सकते हैं। सवाल किया, वो इंतजाम जल्दी ही वो इंतजार खत्म होने वाली है। आने वाले हफ्ते में ही इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं हम लोगों की मशीन कैथ लैब हॉस्पिटल में एंट्री हो जाएगा। उसके इंस्टॉलेशन में जो भी समय लगे, इंस्टॉलेशन के बाद चीजें स्टार्ट कर जाएंगी। हम लोग बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से सारा डिस्कशन चल रहा है, एंड लोगों का कंसल्टेशन ऑलरेडी हो भी रहा है। डेडिकेटेड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डेडिकेटेड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डेडिकेटेड यूरोलॉजिस्ट हैं, डेडिकेटेड न्यूरोसर्जन्स हैं, लाइक डॉक्टर सादिक हैं, और भी दूसरे न्यूरोसर्जन्स हैं। तो हम लोगों का डेडिकेटेड ओपीडी चल रहा है, डेडिकेटेड प्लास्टिक सर्जरी का ओपीडी चल रहा है, डेडिकेटेड गायनेकोलॉजी का ओपीडी चल रहा है, जनरल सर्जरी का ओपीडी चल रहा है, सारी चीजें। साथी कार्ड जो है उनके लिए तो बहुत राहत है। जो स्वास्थ्य साथी के पेशेंट्स हैं उनका जो गवर्नमेंट का डिसाइडेड पैकेज है उसके थ्रू ही ट्रीटमेंट हो रहा है। हम लोगों का 99% पेशेंट स्वास्थ्य साथी में ही इलाज हो रहा है। 1-8% जो डिफरेंट स्टेट्स से पेशेंट आते हैं, जो लोग यहाँ पे एडमिटेड हो जाते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेट पे ही ये हो रहा है, जो ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू